Good morning, all of you. Welcome to your SST class. And students, today I am starting the new chapter of your book Political Science. The name of the chapter is Working of Institution. This is the chapter number 5 of your book. Exactly in this chapter, students, we have to be learn about some institution. Those are help us to run the government or to run the country smoothly, or we can say that we will learn about the institution that help us to in the progress of the country. Here and the institution, like in this chapter we will learn about legislature, executive and judiciary. इन मेजर डिसीजंस को कौन लागू करता है, हु विल टेक द डिसीजंस रिगार्डिंग द कंट्री एंड हु इम्प्लीमेंटेड दीज decisions that we read in this chapter. In this chapter we also learn about the powers of prime minister, president, as well as our judiciary. Okay, so let us start the chapter. The first topic of the chapter is how is a major policy decision taken. Under this chapter we will learn that who take the major decisions regarding the country. Here with an example, the topic is explained to you. Here on August 13th 1990 a government issued an order. Government ने एक order issue किया and the number here, particular number of this order, उसका एक particular नंबर था. और Joint Secretary, an officer in the Department of Personnel and Training in the Ministry of Personal, Public Grievances and Pensions signed the order. उन्होंने इस ऑर्डर को साइन किया. द ऑर्डर इज़ जस्ट ऑर्डनरी ऑर्डर और इट्स लुक्स लाइक एन ऑर्डनरी ऑर्डर, but it creates a lot of hustle and bustle within the country. Exactly in this order, what happened? In this order, a particular number of seats are reserved for SEBC class. Now what is SEBC? SEBC is socially and educationally backward class. SEBC is a socially and educationally backward class. SEBC is another name for all those people who belongs to caste that are considered backward by the government, and they got the benefit of jobs. Reservation was stiller than available only the scheduled caste and scheduled tribes. Now they are able to got the benefits of the jobs. Okay, and this create a lot of disturbance in the society. Now the decision maker, who take the decision? अभी मैंने आपको पीछे बताया कि who signed this. The general secretary of this department signed the order. But then what do you think? He take the decision regarding this? No. As you read in class 8th also कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले द एवरी डिसीजन, कोई भी लॉ कब पास होता है? फर्स्टली दैट पास इन द लोकसभा, देन इन राज्यसभा, उसके बाद वो लॉ बनता है. ठीक है ना? तो इसका मतलब डिसीजन मेकर कौन थे? डिसीजन मेकर थे हमारे लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव्स, राइट ना, हमारे मिनिस्टर्स. बट यहाँ पर मिनिस्टर्स का नाम नहीं आया. तो डिसीजन मेकर्स कौन हैं? हु डिसाइडेड टू इशू दिस मेमोरेंडम? किसने डिसाइड किया कि इस मेमोरेंडम को इशू किया जाए? द ऑफिसर वॉज मर्सली इम्प्लीमेंटिंग एन इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द मिनिस्टर ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन. जो ऑफिसर ने साइन किए उसने क्या किया? उसने सिर्फ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया और उसको साइन कर दिया. हमें भी पता है कि मेजर डिसीजन जो हैं दे आर टेकन बाय एनी अदर पर्सन और एनी अदर. प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द स्टेट एंड ही इज़ द हाईएस्ट नॉर्मल अथॉरिटी इन द कंट्री. उसने डिसीजन लिया. प्राइम मिनिस्टर, जिसके पास एक्सरसाइज द एक्चुअल गवर्नमेंट पावर्स, ही टेक द डिसीजंस. पार्लियामेंट, 2 हाउसेज, लोकसभा एंड राज्यसभा, दैट ऑल्सो टेक द डिसीजन. तो decision is taken by these institutions, but memorandum sign किसने किया? That is by the general secretary. अब इस मेमोरेंडम के लिए एक पूरा कमीशन बिठाया गया था 1979 में, हेडेड बाय बीपी मंडल. ठीक है, और जिसे मंडल कमीशन भी कहते हैं. इसकी रिपोर्ट आई 1980 में और उसके बाद इन जॉब्स को रिजर्व कर दिया गया 27% सीट्स के साथ वीपी
सिंह की गवर्नमेंट जब आई तब उन्होंने मैनिफेस्टो में ये कहा था कि वी विल इम्प्लीमेंटेड दिस। तो जब वो आए तो उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। तो ये था, ये एक डिसीजन, ये दिस इज जस्ट अ एग्जाम्पल, नथिंग इज हियर। यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनता, नथिंग। यहाँ सिर्फ एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये बताया गया है कि हु टेक्स द डिसीजन एंड हु मेक्स द डिसीजन, किसने लॉ बनाया, किसने डिसीजन लिया, ठीक है। तो ये था आपके पास। नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि हु टेक्स द डिसीजन। हमने अंडरस्टैंड किया कि प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर, ऑल दीज थिंग्स आर हेयर, दोज आर jointly take the decision, then it become a law after the sign of a single authority. Okay, so this is, now come on the next topic. The topic is need for political institutions. Why we need the political institution? अगर हम पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की आवश्यकता हमें क्यों पड़ रही है? द एग्जाम्पल दैट वी लर्न एट द लास्ट, क्या पढ़ा कि डिसीजन को लेने के लिए, मेजर डिसीजन किसने लेना था, मेजर डिसीजन जिसने लेना था उसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी? इंस्टीट्यूशंस की। गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग सिक्योरिटी टू द सिटीजन एंड प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ टू ऑल। इट कलेक्ट टैक्सेस। देखो हमें इंस्टीट्यूशंस की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? देखो वो क्या कह रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है? प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ फॉर एजुकेशन। गवर्नमेंट हमें एजुकेशन के लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है। एंड हेल्थ, इट कलेक्ट टैक्सेस कलेक्ट कर रही है। एंड स्पेंड द मनी दस रेज्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, और मनी कहाँ कर रही है स्पेंड? जो हमें एडमिनिस्ट्रेशन में चाहिए, डेवलपमेंट एंड प्रोग्राम्स के लिए। सम पर्सन्स हैव टू टेक डिसीजन ऑन हाउ टू गो अबाउट दीज एक्टिविटीज़, अदर्स हैव टू इम्प्लीमेंट दीज डिसीजन। कुछ लेते हैं डिसीजन कि कैसे काम करना है और कुछ उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इफ़ डिस्प्यूट अराइज, और अगर इनके बीच में कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो इट वॉज सॉर्ट आउट बाय आर जुडिशरी। तो डिसीजन सॉर्ट आउट किया जाता है हमारी जुडिशरी के द्वारा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट एवरीवन शुड नो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग वट। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट दैट these activities keep taking place even if the person in key position change। ठीक है, ये ज़रूरी है कि किसने डिसीजन लिया, और ये भी ज़रूरी है कि चाहे पर्सन जिसने लिया वो चेंज भी हो जाए, बट अगर वो एग्जीक्यूट हुआ है तो वो एज इट इज़ चलेगा। तो इस चीज़ के लिए भी हमें एक इंस्टीट्यूशन चाहिए। हु विल लुक आफ्टर? हमारी जुडिशरी देखती है। ठीक है, तो डेमोक्रेसी तभी काम करेगी जब सभी इंस्टीट्यूशंस सही वर्क करेंगे और वो वर्क जो उनको परफॉर्म करने के लिए ड्यूटी दी गई है। ठीक है, चलिए लेट अस रीड दैट। इन एग्जाम्पल हमने देखा कि बहुत सारे पर्सन्स काम कर रहे हैं। कौन कौन? प्राइम मिनिस्टर, सिविल सर्वेंट्स, सुप्रीम कोर्ट। वर्किंग ऑफ द विद इंस्टीट्यूशन इज़ नॉट ईजी, और ये सभी इंस्टीट्यूशन ज़रूरी हैं। सुप्रीम कोर्ट भी ज़रूरी है, सिविल सर्वेंट्स भी, और प्राइम मिनिस्टर भी। ठीक है, अब अगर ये काम नहीं करेंगे तो क्या होगा? काम ही नहीं होगा कंट्री में, डेमोक्रेसी ही नहीं होगी। ठीक है, दिस कैन बाइंड द हैंड्स ऑफ लीडर्स। इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व मीटिंग, कमेटी एंड रूटीन्स। दिस ऑफन लीड्स टू डिले एंड कॉम्प्लिकेशन। अब इनका जो वर्किंग है हमारे इंस्टीट्यूशन का, ये कोई इजी टास्क नहीं है। इट इज़ द टफेस्ट वन एंड इट इज़ टेक द टाइम। it sometime it was not liked by the people, but still they are doing, and after some time उसमें कुछ चेंज भी किया जा सकता है if लोग कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम क्रिएट करें। So we can say that these institution is very much important, and the working of these institution is also important. इंस्टीट्यूशन ज़रूरी हैं, इनकी वर्किंग भी ज़रूरी है। एंड
स्मूथ वर्किंग के लिए इनके पास कुछ पावर्स हमने दी हैं, कुछ प्रोसेस दिए हैं जिसके अकॉर्डिंग हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वर्क करते हैं। एंड ऑल दीज थिंग्स आर मेंशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। ठीक है, चलिए नाउ कम द नेक्स्ट, द वेरी फर्स्ट इंस्टीट्यूशन, द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन इज पार्लियामेंट। सबसे पहला इंस्टीट्यूशन है हमारे पास पार्लियामेंट, जो कि हमारे पास आता है अंडर द लेजिस्लेचर। एज यू ऑल नो दैट इन आवर पार्लियामेंट वी हैव द 2 हाउसेस, हमारे पास 2 हाउसेस हैं, वन इज लोकसभा एंड सेकेंड इज राज्यसभा। ठीक है, हमारे पास 2 हाउसेस हैं, वन इज लोकसभा एंड सेकेंड इज राज्यसभा। बच्चे अभी तक मैंने आपको जो चैप्टर समझाया है, इन दैट चैप्टर यू जस्ट हैव टू बी लर्न दैट ओनली दैट वाई वी नीड द इंस्टीट्यूशंस, हमें इंस्टीट्यूशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, दैट्स इट। नाउ वी विल लर्न अबाउट द पार्लियामेंट। अब हम पढ़ेंगे कि हमें पार्लियामेंट की आवश्यकता क्यों है। पार्लियामेंट, as we know that in our parliament we have the prime minister, president and the lok sabha and rajya sabha। ठीक है, तो अब हमें पार्लियामेंट की आवश्यकता क्यों है, why do we need a parliament? In all the democracies, an assembly of elected representatives exercise supreme political authority on behalf of the people। देखिए, हमें पार्लियामेंट की आवश्यकता क्यों है। डेमोक्रेसी में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं एंड दे हैव सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल, और वो पार्लियामेंट क्या है, पॉलिटिकल अथॉरिटी है जो कि लोगों की तरफ से काम कर रही है, लोगों के द्वारा चूज होकर आई है, लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे हैं, इसलिए वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एट द स्टेट लेवल दिस इज कॉल्ड लेजिस्लेचर और लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट लेवल पर हम इसे लेजिस्लेचर और लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। द नेम मे वेरी इन डिफरेंट कंट्रीज, नेम जो है पार्लियामेंट का वो वेरी करता है अलग अलग कंट्रीज़ में, किसी में पार्लियामेंट कहा जाता है, किसी में सीनेट कहा जाता है, किसी में कुछ और भी नेम दिए जाते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट नेम्स आर देयर। नाउ वी विल सी पार्लियामेंट क्या है। पार्लियामेंट इज द फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉज इन द कंट्री। दिस टास्क ऑफ लॉ मेकिंग और लेजिस्लेशन is so crucial that these assemblies are called legislature। पार्लियामेंट एक फाइनल अथॉरिटी है जो कंट्री की प्रोसेस को वर्किंग करने के लिए लॉज बनाती है। ठीक है, पार्लियामेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड न्यू लॉज बनाती है इन द एग्जिस्टिंग कंट्री वेयर दैट इज वर्किंग, और अबॉलिश द एग्जिस्टिंग लॉ, मेक द न्यू वंस इन देयर प्लेस। वो जो चल रहे हैं उनको अबॉलिश भी कर सकती है और उनकी जगह पर नए भी बना सकती है। नेक्स्ट, पार्लियामेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सरसाइज सम कंट्रोल ओवर दोज हु रन द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट क्या करती है, कंट्रोल करती है उनके ऊपर जो कि गवर्नमेंट को चला रहे हैं। एज वी ऑल नो दैट, देखो पार्लियामेंट में कितने हैं, लोकसभा राज्यसभा मेंबर्स हैं ना, 535 45 मेंबर्स आर देयर। ऑल दे आर इन गवर्नमेंट? नो, some are in the government, some are related to the government party, but some are in the opposition party। तो जब वो अपोजिशन में बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है, और अगर गवर्नमेंट सही काम नहीं कर रही तो वो गवर्नमेंट को उसके लिए अवेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पार्लियामेंट जो है वो कंट्रोल भी करती है उन लोगों के ऊपर हु रन द गवर्नमेंट। अगर उनको कंट्रोल करने के लिए कोई नहीं होगा तो क्या होगा, जिसकी सरकार होगी वो अपनी इच्छा से काम करेगी, अपनी मनमानी करेगी, और वो किस में टर्न हो जाएंगे, वो एक किंगशिप में या डिक्टेटर में टर्न हो जाएंगे। ठीक है, तो अब बट पार्लियामेंट उन लोगों के वर्किंग को कंट्रोल में रखती है जो कि सरकार चला रहे हैं। ठीक है, उनकी अगर वो कोई बैड डिसीजन लेते हैं तो उनके बारे में भी उन्हें बताया जाता है। ठीक है,
Those who run the government can take decision only so long as they enjoy support of the parliament. वो डिसीजन तभी तक ले सकते हैं जब तक उन्हें पार्लियामेंट की तरफ से यस हो रही है, सपोर्ट मिल रहा है. अगर पार्लियामेंट नो कह दे उनके डिसीजंस के ऊपर तो वो डिसीजंस नहीं ले पाएंगे. ठीक है, चलिए. पार्लियामेंट कंट्रोल ऑल द मनी. मनी बिल आता ना लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी. वो क्यों आता है? क्योंकि गवर्नमेंट बता रही है कि हमने इतना पैसा खर्च करना है और कहाँ करना है, ये बताना उसके लिए ज़रूरी है. बिना बताए वो पैसा खर्च नहीं कर सकती. तो पार्लियामेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट की पैसे पर भी कंट्रोल रख रही है कि कितना पैसा कहाँ पर, पब्लिक का जो पैसा है वो कहाँ स्पेंड हो रहा है. ठीक है, चलिए. पार्लियामेंट इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट. हाईएस्ट फॉर्म है डिस्कशन. लोकसभा में, राज्यसभा में जो मेंबर्स हैं वो बैठे हैं और वो मीटिंग्स में डिस्कस करते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट ऑफ गवर्नमेंट और एनी डिसीजन. ओके. इन आवर कंट्री देयर आर 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट. हमारे कंट्री में 2 हाउसेस हैं पार्लियामेंट के. वन इज़ लोकसभा एंड सेकंड इज़ राज्यसभा. एंड आई थिंक सो दैट यू ऑल नो अबाउट व्हाट इज़ लोकसभा एंड व्हाट इज़ राज्यसभा. आप सबको पता है कि लोकसभा क्या है और राज्यसभा क्या है, किस तरह से वर्क करती है. लोकसभा क्या है? लोकसभा इज़ द लोअर हाउस and Rajya Sabha is the upper house. In the class 8th you all learn about the difference between the Lok Sabha and Rajya Sabha. How many members are there in Lok Sabha? Yes, as you all know that there are 545 members in Lok Sabha and 250 members in Rajya Sabha. ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा में मेंबर्स होते हैं. लोकसभा में 545 में से 543 members are elected by the people and only 2 are here, those are nominated by the president. But in Rajya Sabha there are 12 members, those are nominated by the president, and these members are the having a great in their own field. वो अपने फील्ड में माहिर होते हैं, अपने फील्ड में फर्स्ट होते हैं एंड दे कैन बी नॉमिनेटेड फॉर देयर एज द मेंबर ऑफ राज्यसभा. ओके. तो लोकसभा कैसे काम करती है, राज्यसभा कैसे काम करती है, आई विल डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, गुड बाय, थैंक यू.